Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I will start the session with the name of Allah Almighty, who gave us all the precious abilities. Let's begin the session with the dua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Welcome to English Grammar Short Course Online Class Session number 5. My name is Miss Fazila and I live in Karachi. Here, me and my Students Online Academy teams are conducting these free online sessions to increase students' interest in online sessions, especially for school-going kids. So you and your kids may take classes from your convenient rooms without any hassle. Our today's topic is perfect continuous tenses. But before that, let's look out what we learned from session number 4. Perfect tenses, definition, the usage of perfect tenses, the helping verb used in present perfect tenses, past perfect tenses, and future perfect tenses. What is perfect continuous tense? The perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past, continued for a duration, and may still happening in the present. एक ऐसा काम जो हमारे पास्ट में शुरू हुआ, एक छोटे से अरसे के लिए होता रहा और हो सकता है कि वो हमारे प्रेजेंट में भी अभी वो काम चल रहा हो. It can also be used to describe an action that recently finished but is still relevant to the present. इसे यूं भी कहा जा सकता है कि एक ऐसा काम जो अभी अभी बिल्कुल जस्ट रिसेंटली ही खत्म हुआ है मगर उसका ताल्लुक अभी भी हमारे प्रेजेंट में है, यानी हमारे हाल में अभी भी उसका ताल्लुक या उसका जिक्र हो सकता है या हो रहा है. They emphasize both the duration and continuity of an action. Look out steps for perfect continuous tenses in English grammar. Present perfect continuous. The helping verbs are has been and have been. The form of verb will be used the fourth form of verb, which is base verb, first form of verb plus ing. And for the time reference, we will use since or for. Okay, let's look the positive structure of present perfect continuous tenses. Subject plus helping verb plus fourth form of verb plus object plus time reference. For example, she has been studying chemistry for 3 hours. वो केमिस्ट्री पढ़ रही है 3 घंटे से. अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि 3 घंटे से पढ़ रही है, यानी पिछले 3 घंटों का जिक्र है, यानी पास्ट का जिक्र है. ठीक है, और अभी तक वो काम हो रहा है. इन प्रेजेंट अभी तक वो काम हो रहा है. नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस. अच्छा, यहाँ पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक कर दिया है. नेगेटिव या इंटेरोगेटिव टेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटीन्यूअस में ब्रेक हो जाता है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. शी हैज नॉट बीन स्टडिंग केमिस्ट्री फॉर 3 hours. वो 3 घंटे से केमिस्ट्री नहीं पढ़ रही है. इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हैज और हैव प्लस subject plus been plus fourth form of verb plus object plus time reference, then question mark. For example, has she been studying chemistry for 3 hours? Question mark. Okay, let's look out
Why since and for used in perfect continuous tenses? Since and for are used in perfect continuous tenses to indicate the duration of an action that started in the past and is still continuing. Since used for specific points in time. Since is used when referring to a specific starting point in time. For example, a year, a month, a time of a day, or an event. सिंस कब यूज होता है? जब हम अपने सेंटेंस में किसी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, किसी भी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट। प्लीज कीप इट इन माइंड, किसी भी टाइम का जब हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं तब हम सिंस यूज करते हैं। इट टेल्स व्हेन द एक्शन बिगिन, ये हमें बताता है कि असल में वो काम कब होना शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 AM, यानी वो पढ़ रही है सुबह 8 बजे से। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम बताया है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट बताया है कि 8 बजे से पढ़ रही है। अब वो अलग बात है कि अभी तक 2 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से पढ़ रही है, स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। यहाँ क्या बताया? स्पेसिफिक ईयर, कब से रह रहे हैं वो, यहाँ कब से रह रहे हैं? 2015 से, सिंस 2015। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, स्पेसिफिक डे। अब यहाँ पर भी सिंस मंडे, यानी मैं आपका मंडे से इंतजार कर रही हूँ। मंडे क्या बताया? स्टार्टिंग टाइम बताया है इंतजार का। यहाँ पे 2015 स्टार्टिंग ईयर बताया है रहने का। यहाँ पर 8 AM स्टार्टिंग टाइम बताया है स्टडी का। यानी कि हर वो काम जिसका स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र करना हो वहां हम सिंस यूज करते हैं इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। ओके, for, which is used for duration of time. For is used to describe a period or length of time. A period or a length of time. For example, hours, days, weeks, months और years। जब भी हमें इनका जिक्र करना हो और उसकी लेंथ बतानी हो तो हम for यूज करते हैं। For example, she has been studying for 3 hours. वो कब से पढ़ रही है? 3 घंटे से पढ़ रही है। अब 3 घंटे स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया, जस्ट ये बताया कि पिछले 3 घंटे से पढ़ रही है। यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम का जिक्र है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 8 years। यहाँ पे ड्यूरेशन बताया है, यानी कि लेंथ, पीरियड या फिर ड्यूरेशन का जिक्र है ना, तो जब हम फोर यूज करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 20 minutes। यहाँ पे स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम बताया है, मैं आपका 20 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। परफेक्टली हमने सिंस और फॉर का यूज सीख लिया है। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। रूल्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। Usage, an action that began in the past and is still continuing or has recently stopped। एक ऐसा काम जो कि हमारे पास्ट में शुरू हुआ, माजी में शुरू हुआ, लेकिन वो या तो अब तक हो रहा है या जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ रही है। अब यहाँ पे भी सुबह से यानी कि पास्ट का जिक्र है कि एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है। वो सुबह से खेल रहे हैं। शी हैज बीन फॉर 2 hours।
वो सुबह से पढ़ रही है, यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ, 2 घंटे पहले से शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है, अभी तक पढ़ रही है। ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। दे डैश फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे और वर्ब की करेक्ट फॉर्म भी, विच इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करेंगे। दे के साथ हम हैव यूज करते हैं, सो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट ब्लैंक, इट डैश सिंस मॉर्निंग। इट के साथ हम हैज का यूज करते हैं, सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यू डैश ऑन द फोन फॉर 30 मिनट्स। यू के साथ हम हैव यूज करते हैं, सो यू हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर 30 मिनट्स। Past perfect continuous tenses. The helping verb had been. The form of verb will be base verb or first form of verb plus ing. And for the time reference, we will use since or for, as we learned from last slides. Okay, पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, they had been waiting for an hour before the bus arrived. They had been waiting for an hour before the bus arrived. अब यहाँ पर before the bus arrived से पता चल रहा है ये past sentence है। अब ये काम इस तरीके से ही है कि past sentence और उससे भी पहले का मजीद एक काम का बताया जा रहा है कि जब बस आई उससे भी 1 घंटे पहले से वो इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, इसके लिए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हमने ब्रेक कर दिया है। प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द बस अराइव्ड। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। हैड, अब हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे ब्रेक भी हुआ है और सब्जेक्ट से भी पहले आया है। had plus subject plus been plus fourth form of verb plus object, then plus time reference and question mark is must. Had they been waiting for an hour before the bus arrived? Just look out the exercise. Structure देखते हैं। Subject plus helping verb plus fourth form of verb plus tense of for plus time. इसका इस्तेमाल usage, an action that started in the past, continued for some time, and ended before another past action. एक ऐसा काम जो कि हमारे पास्ट में ही शुरू हुआ, कुछ टाइम के लिए होता रहा और खत्म भी हो गया इससे पहले कि दूसरा काम होता, पास्ट में ही दूसरा काम होता। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड। अब इसी की मिलती जुलती एग्जाम्पल हमने लास्ट स्लाइड में भी लिखी थी। दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द बस अराइव्ड। इसी तरह की एग्जाम्पल है, वी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड। व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड, यहाँ पे अराइव्ड से हमें पता चलता है कि ये भी पास्ट सेंटेंस है और ये भी आ गई है, यानी कि ये काम भी कंप्लीट हो गया है। और उससे भी पहले का हम एक काम का जिक्र कर रहे हैं कि वी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। हम इंतजार कर रहे थे बस के आने से भी 1 घंटे पहले से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he had been working at the company for 5 years before he left. अब यहाँ पर भी लेफ्ट से हमें पता चलता है कि ये भी पास्ट सेंटेंस है और उससे भी पहले का 5 years का जिक्र है। he had been working at the company for 5 years. वो इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, इससे पहले कि उसने छोड़ा, यानी कि उसके बाद उसने छोड़ा, यानी 5 साल काम करने के बाद छोड़ दी, वो कंपनी छोड़ दी। ये काम भी
पास्ट का हो गया, और उससे पहले का काम जो बताया कि वो काम कर रहा था वो भी पास्ट पास्ट में आ गया। ठीक है, इसकी ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। आई डैश ऑल नाइट बिफोर आई टुक द एग्जाम। अब आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव, लेकिन ये पास्ट सेंटेंसेस हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम जस्ट हैड यूज करेंगे। आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट बिफोर आई टुक द एग्जाम। We dash 4 miles before we found a place to rest. We had been walking 4 miles before we found a place to rest. The mechanic dashed the car for 3 hours before it started working. The mechanic had been fixing the car for 3 hours before it started working. Okay, let's see future perfect continuous tenses. Having work will have been. Fourth form of verb will be used, and the type of reference will use since or for. Okay, let's look at the positive structure. Subject plus helping verb, which is will have been, plus fourth form of verb, which is base verb of first form of verb plus ing, then plus object plus time reference. For example, he will have been working here for 5 years by next June. बाय नेक्स्ट जून मीन्स ये नेक्स्ट जून से मुराद यानी कि आने वाले जून की बात है, कि अगले जून तक। ही विल हैव बीन वर्किंग हियर। विल हैव बीन से पता चल रहा है ये फ्यूचर सेंटेंस है, और बाय नेक्स्ट जून से भी पता चल रहा है कि अगले मजीद टाइम का जिक्र है। वो यहाँ काम करता रहेगा पिछले 5 साल से अगले जून तक, यानी वो पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा है और अगले जून तक काम करता रहेगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। अच्छा, यहाँ पर भी विल हैव बीन ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने का तरीका इसमें ये होता है कि विल ब्रेक होता है, देन नॉट आता है, देन हैव बीन। इसी तरह इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देते हैं। बहरहाल पहले नेगेटिव की एग्जांपल देखते हैं। He will not have been working here for 5 years by next June. Interrogative structure: will plus subject plus have been plus fourth form of verb plus object plus time reference then question mark. Will he have been working here for 5 years by next June? Question mark. Okay. Exercise. Rules for future perfect continuous tenses. Structure: subject plus helping verb, which is will have been, plus fourth form of verb plus since before plus time. Usage: an action that will continue for a specific duration in the future before a certain point. एक certain point तक, for example, by next year, by next June, by 8 a.m. etc. एक certain time limit तक एक काम फ्यूचर में होता भी रहता है, और एक काम जो कि कंटिन्यू रहता है कुछ ड्यूरेशन तक के लिए फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, शी विल हैव बीन स्टडिंग मेडिसिन फॉर 5 years। वो 5 साल से अगले साल तक मेडिसिन की स्टडी कर रही होगी, यानी वो अगले साल तक कर रही होगी। पिछले 5 साल से एक काम हो रहा है, यानी कि इसका कनेक्शन आप देखें कि एक काम जो कि पास्ट से शुरू हो रहा है, 4 5 years यानी पास्ट से शुरू हो रहा है, और उसका कनेक्शन जाकर आपका मिलता है फ्यूचर में बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। वो पिछले 5 साल से लेकर मेडिसिन की स्टडी करती रहेगी अगले साल तक, या कर रही होगी। By 6 p.m., they will have been traveling for 10 hours.
वो 6 बजे तक सफर करते रहेंगे 10 घंटे से, यानी वो मुसलसल एक सफर कर रहे होंगे पिछले 10 घंटे से 6 बजे तक। इसकी ब्लैंक्स देखते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश एट दिस कंपनी फॉर 10 years. She will have been working at this company for 10 years. By the time they arrive, we dash for 6 hours. By the time they arrive, we will have been driving for 6 hours. By the end of the day, we dash on this project for a full week. By the end of the day, we will have been working on this project for a full week. Okay, the English Grammar Short Course program has ended now. Certificates will be awarded to those who have attended all 5 online class sessions. Okay, all the lectures I gave you are on our YouTube channel and Facebook page. You may visit them and please review your experience, that how was the all sessions to you, and share them with your friends and family also. I will introduce more advanced English grammar courses soon, so keep connected through WhatsApp group with SOA, our Students Online Academy. You make sure to participate in the quiz after class by clicking the quiz link. इंशाल्लाह ताला हम फिर दोबारा किसी न्यू प्रोग्राम में, न्यू सेशंस में दोबारा हम मिलेंगे। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।